नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम विजय शर्मा है और मैं अपने मित्र श्री किरण कुरवारे जी और उनकी शुरू की हुई बुक रीडिंग सीरीज के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। किरण जी जो कि एक बड़े सुलझे हुए और बड़े नेक दिल इंसान हैं और साथ ही मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, उन्होंने ये बुक रीडिंग सीरीज जो शुरू करी है, इससे लोगों में एक जागृति पैदा होती है, किताबों के प्रति एक आकर्षण पैदा होता है। बुक रीडिंग के प्रति एक अवेयर करने के लिए उन्होंने ये सीरीज शुरू करी है और बुक यानी किताबें, जैसा कि हम कहते हैं, जानते हैं कि उससे अच्छा मित्र इंसान का दूसरा हो नहीं सकता। इसके बहुत फायदे हैं। इससे आपका दिमाग तीक्ष्ण होता है, आप डिस्ट्रेस होते हैं, आप अपने बारे में और अपने सराउंडिंग के बारे में इस माध्यम से बहुत अच्छी तरह से उसको जान सकते हैं। किरण जी हर हफ्ते किसी न किसी एक नई पुस्तक के बारे में बहुत ही आकर्षक तरीके से, बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से हमें इस बारे में बताते हैं। आज देखते हैं कि वो किस पुस्तक के बारे में हमसे शेयर करने जा रहे हैं। ओवर टू किरण जी। बहुत साधुवाद, सभी मित्रों का बहुत धन्यवाद। ज़ेन मास्टर हुए च्वांग त्सु। उन्होंने एक रात सपना देखा और सुबह वो थोड़े से परेशान थे, तो उन्होंने अपने मित्रों को वो सपना सुनाना चाहा। वो कहने लगे, रात को मैंने एक सपना देखा और सपने में मैंने देखा कि मैं तितली हो गया हूँ, तितली, बटरफ्लाई। तो मित्रों ने कहा, कौन सी बड़ी बात है, लोग सपना देखते हैं, वो कुछ हो जाते हैं, कभी जानवर हो जाते हैं, कभी कुछ हो जाते हैं, ठीक है। कहते नहीं, अब दुविधा यह है कि जब मैंने सपना देखा और देखा कि च्वांग त्सु जो है, जो मैं हूँ च्वांग त्सु, वो तितली हो गया है। अब समझ में नहीं आ रहा क्या वो मैं हूँ या तितली। क्या ऐसा तो नहीं कि वो तितली सपना देख रही है कि वो च्वांग त्सु हो गई है। Ladies and gentlemen, boys and girls, in pursuit of the spiritual journey, the higher quest, we all have this question, right? The question is, are we the human beings having spiritual experience, or are we the spiritual beings having human experience? Isn't it? So thank you very much, Dada. Thank you very much, Bhaiya. Bhaiya is known as Purple Yogi Vijesh ji, and I am deeply touched by his lifestyle. Yeah, I get inspired by his multi-dimensional lively posts on social media. They are amazing. They are like touching every aspect of life. Yeah. So Purple Yogi ji has his own Purple Yogi's Hermitage also at Rishikesh, and he has transcended, or if I may call, he's beyond all kinds of gurudom, or a kind of getting confined, trying to confine life with certain norms or rules or regulations or scriptures. He's beyond all that. He's truly into life. Yeah, he believes in love, selfless love, and he lives that, and that's what his way of spreading is. At his hermitage, you will see the musical events, yeah, meditations, and celebration of life. He's into celebration of life in most purest possible way, keeping this lifestyle in mind. If I may pick today, which every spiritual seeker looks upon this book as a reference guide, and I think everyone stumbles on this book and gets highly inspired. And that is, yes, if you would have guessed that, that is autobiography of a yogi. Yes, none other than the great soul who walked on planet Earth from 1893 to 1952. Yeah, approximately 59 years. And he did the work, which is like a scripture in itself, which is like an epic in itself, right? So, autobiography of yogi by Paramahamsa Yoganand ji. Yes. Okay. Before taking a deep dive into this very interesting, inspiring and insightful epic, yeah, let's try to know if in case the spiritualists who are novice, he spent most of his time in US, mostly in Los Angeles, yeah, for approximately 32 years, and he's a founder of YSSI, that is Yogada Satsang Society of India, and basically he was there to spread Kriya Yoga, Kriya Yoga, as suggested by his Guru Swami Yogi Yukteswar ji. Yeah. He was actually asked by the Avatar Babaji,
the Mahavatar Babaji. Yeah. Okay, we'll get into this different sections of the book, the content of the book. Altogether, it contains 49 chapters, ladies and gentlemen. 49 अध्याय हैं. ये मेरे पास में हिंदी का है, मैंने अंग्रेजी में भी पढ़ा है. एक्चुअली ये जो लिखा था योगी जी ने, वो अंग्रेजी में ही लिखा है 1946 में, और से करीबन ये 45 से 46 भाषाओं में इसका ट्रांसलेशन हुआ है. देश विदेश में कई बड़ी बड़ी हस्तियों ने इसको पढ़ा है. Steve Jobs, as we all know, Steve Jobs, one of the favorite books was this book. Yes, and there are many celebrities in West. I don't want to get into the detailed book review, as you know, because it will take a lot of time. Mota moti, by and large, the book is divided into 4 sections, and the 4 sections are, for example, the first one is history and childhood, about his experiences. Yeah. And then Yogi ji is talking about when he met different kinds of sages and saints. Yeah, for example, the saint with the saint having 2 bodies, perfume saint, बहुत ही interesting है. And the saint which was physically at one place but also was at some another place. तो काफ़ी चमत्कार है इस किताब में. इस किताब में कुल मिलाकर 49 चैप्टर्स है, 49 अध्याय हैं. YouTube में भी इसका ऑडियो बुक का है, पूरे 49 चैप्टर्स है. 50 एपिसोड्स है एक्चुअली. इंट्रोडक्शन भी है थोड़ा सा, और ये आप YSS में देखोगे, यूट्यूब में आप देखिए, योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया, और हरीश भीमानी जी की आवाज़ में है. तो सो एवरी चैप्टर, एवरी वर्ड इज बेसिकली अ पर्ल ऑफ विजडम. या बट माई फेवरेट चैप्टर इज चैप्टर 30 एंड दैट इज बेसिकली द लॉ ऑफ मिराकल्स, चमत्कार के कुछ नियम. इसमें मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इसमें जो बात होती है वो बात यह है कि मैं आपको छोटा सा किस्सा सुना दूँ कि एक आइलैंड पर, कहीं पश्चिम में एक टापू पर 3 योगी रहते थे, या 3 संत रहते थे. और वो 3 संत की एक प्रेयर होती थी. वो प्रेयर यही होती थी ईश्वर से कि हम 3, हे ईश्वर, हम 3 और आप 3, कृपया हम पर दया करें. तो ये बड़ी अजीब सी उनकी प्रेयर होती थी. तो पास ही गांव में एक पादरी रहते थे. तो जो बिशप है वो, उनको पता चला कि ये बड़ी अजीब सी प्रेयर है इनकी. तो वो उनके पास में आए, पार करके बोट में उस टापू पर आए और उनको मिले, और उन्होंने कहा कि ये भी कोई प्रेयर है, आप थोड़ी अलग प्रेयर करो. तो उन्होंने कुछ प्रेयर बताया. तो और फिर बिशप जो है, जो पादरी है, वहाँ से निकल पड़े. वो जो नाव में जा रहे थे, वो देखा कि एक रोशनी उनके पीछे आ रही है, और उस रोशनी में ये 3 संत पानी पे चलते हुए आ रहे हैं. वो एकदम चकित हो गए, वो हैरान हो गए, उनको बहुत बड़ा झटका लगा. तो वो कहते हैं, ये तीनों संत पानी पे कैसे चल रहे हैं यार, दिस इज़ अ मिरेकल. तो और वो तीनों संत उनको कह रहे हैं कि आपकी प्रेयर आप फिर से बताओ, हम भूल गए. तो ये, तो फिर पादरी कहते हैं नहीं, आप अपनी पुरानी प्रेयर ही करो, वही अच्छी है. राइट. तो भाई मिरेकल्स की अगर बात करें तो व्हाट इज़ अ मिरेकल? that is beyond our so-called physical laws, isn't it? The scientific laws, which doesn't fit into your physical laws, then we say it is a miracle. But अगर उसे बारीकी से देखा जाए, ईमानदारी से देखा जाए, तो हमारा मौजूद होना भी एक चमत्कार है. इस विश्व का होना, इस अस्तित्व का होना, प्रकृति का होना भी एक चमत्कार ही है. चांद सितारे अपनी गति से अपने ऑर्बिट में घूम रहे हैं, अपने ट्रैजेक्टरीज से बाहर नहीं जाते, वो भी अपने आप में एक चमत्कार है. राइट. Today, as we all know, the modern science, the atomic science says that we cannot say that the matter is matter, right? There is non-matter as well. We cannot say that this is energy, this is particle also. The energy and particle is together. That's what they are saying. इस चैप्टर में बहुत से एग्जाम्पल्स है. आइंस्टीन की रिलेटिविटी, उनकी यूनिफाइड मैग्नेटिक थ्योरी की अगर बात करें, वो उसका भी खुलासा है, कई एग्जाम्पल्स है. तो जैसे आइंस्टाइन ने, आप सबको पता है, E=mc² का जो फार्मूला दिया हुआ है, तो उन्होंने लाइट को एक रेफरेंस रखा हुआ है. उसके अलावा उन्होंने कहा कि एवरीथिंग इज रिलेटिव, इजंट इट? तो बहुत बड़े सिद्धांत दिए उन्होंने, सापेक्षवाद, रिलेटिविटी. अब सापेक्षवाद की बात करें, शायदवाद की अगर बात करें, तो भगवान महावीर ने भी ये बात कही हुई, क्योंकि भगवान महावीर को जब कोई पूछा था कि सत्य है या नहीं, तो वो हमेशा शायद लगाते थे, शायद है शायद नहीं, हर बात पे. क्योंकि आप दावे के साथ कोई चीज़ कैसे कह सकते हो? किसी कॉन्टेक्स्ट में है, वो किसी कॉन्टेक्स्ट में नहीं है. जैसे हम जानते हैं कि जो अस्तित्व है एक माया है. अब माया का मतलब ये नहीं कि उसका अस्तित्व ही नहीं है.
है, बट वो बदलता रहता है, उसका जो स्वरूप है वो एक जैसा नहीं है, इट ऑलवेज चेंजिंग, वी ऑल नो दैट, सो इट्स इल्यूसरी, राइट, इट इज़ ट्रांसिटरी। तो खैर इसमें बहुत सी बातें हैं। और दूसरी जो बात इस किताब की मुझे ये लगी, योगी जी ने विज्ञान की भी इसमें स्तुति की हुई है, हमारे संतों की भी स्तुति की हुई है, कई चमत्कार उन्होंने देखे हुए हैं, जैसे कि लहरी महाशय की वो बात करते हैं, जीसस की बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि जीसस क्राइस्ट ने और लहरी महाशय ने जो चमत्कार किए, कैसे जीसस क्राइस्ट, कैसे उनका शारीरिक अंत हुआ, फिर वापस वो कैसे शरीर में जिंदा हुए, हाँ, ये अपने आप में एक चमत्कार है। कैसे उन्होंने किसी को जीवंत किया, ऐसे एक किस्सा है इस किताब के अंदर में, आप मेरे ख्याल से चैप्टर 32 है शायद, कि कैसे एक राम नाम के व्यक्ति को लहरी महाशय जो है वो जीवित कर देते हैं। हाँ, द नैरेटिव ऑफ द बुक इज माइंड ब्लोइंग, इट विल ब्लो ऑफ योर माइंड, इट विल ब्लो ऑफ योर माइंड, एंड हु नोज, it will enable you for certain kind of psychological or spiritual mutation. So let's go explore and co-evolve with Paramahams Yoganand ji. Thank you very much.